आयुष्मान भव कैंपेन का लॉन्च है। माननीय राष्ट्रपति महोदया उन्होंने आज लॉन्च किया है राष्ट्रीय लेवल पे, और सिमिलरली स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में भी आज लॉन्च हुआ है। और संस्कृति में प्राचीन समय से ही संपूर्ण विश्व सपना लिए आगे बढ़ रही है और भारत के अंतिम नागरिक कल्याण मंत्रालय 15 सितंबर से प्रारंभ हो रही डायबिटीज तथा सिकल सेल की जांच एवं माताओं व बच्चों का टीकाकरण होगा। सर्जरी, ENT एवं आई चेकअप जैसे सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ सभा 2 अक्टूबर को ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति VHSNC लेवल पर आश्रम सभाएं आयोजित करेंगी एवं आधार ID कार्ड का वितरण किया जाएगा। ये सूची एवं Assistant Commissioner. Today we have launched a national level program called Ayushman Bhava, and Ayushman Bhava will be a campaign which will start in the district level tomorrow onwards, but the actual programs will start on 17th, and from 17th to 2nd October, that is for 15 days, that Pakhwada should be known as Seva Pakhwada. तो ये हमारे लिए not only health department but all the organizations and all the part of societal strata, जिसमें अलग अलग सिविल सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशंस है, PNRD मेंबर्स होते हैं, गांव पंचायत लेवल में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, यूथ क्लब्स, जितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, अदर डिपार्टमेंट्स, PNRD डिपार्टमेंट्स, अदर लाइन डिपार्टमेंट्स, आंगनवाड़ी, WNCD डिपार्टमेंट, इन सबको साथ में आके इसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। और उसको ध्यान में रखते हुए 17 तारीख से लेके 2 तारीख तक हम लोग ये सेलिब्रेट करेंगे। Hailakandi district is considered to be an aspirational district, and in health and wellness parameters, in some parameters we are we were traditionally lagging behind, but now onwards in last 4 to 5 years we have introduced some major infrastructural arrangements. We have started with civil hospital, upgradation of civil hospital, then we upgraded it to the ICU, then added beds, then oxygen facilities, oxygen plant, etc. But that is a centralized nature. But in periphery also we have added health and wellness centers. Now we have 66 functional delivery points along with 107 sub-centers. So periphery health and wellness infrastructure also we are adding. But the point is, in some areas the problems are very different, and in some areas the problems are very unique. For example, in tea garden areas we have
a habit of having salt tea along with illicit or sulai. So that leads to more number of anemic patient, particularly in pregnant lady. So that area, that identification of area is a major factor of this Pakhwada. So in this Pakhwada, we suppose that all these 4 columns, we are supposed to identify the gaps, where exactly we need to intervene and which department we will participate in this. So I request all the organization, be it Lions Club, Rotary Club, or any registered NGO or any volunteer for that matter. If any volunteer he wants to join with the department or the club, it is more than welcome. Because it's a जन भागीदारी, it's a people participation approach के साथ हम लोग इसमें काम करेंगे. The more important part is on 17th we will start with the Ayushman Bhava campaign. So Ayushman Bhava campaign में we are focusing on 3 major steps or 3 major initiatives. The first would be Ayushman आपके द्वार, जो आयुष्मान भव का तृतीय चरण के हिसाब से काम करेगा और जो भी राशन कार्ड होल्डर्स है डिस्ट्रिक्ट में वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए, जो है आयुष्मान भारत या पीएमजे जिसको हम बोलते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है जिसमें बेनिफिशियरी एलिजिबल है लेकिन उसको कार्ड नहीं मिला है, इसीलिए बेनिफिशियरी खुद जाके रजिस्टर कर सकता है, लेकिन देखा गया है कि बेनिफिशियरी खुद रजिस्टर नहीं कर पाता है. तो आई रिक्वेस्ट ऑल द ब्लॉक्स, ऑल द हेल्थ ब्लॉक्स एंड द ऑफिशियल्स एट सब सेंटर लेवल टू गो हाउस टू हाउस. तो 17 तारीख से हम हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करेंगे. जो भी एलिजिबल रहेंगे उसमें हम कार्ड क्रिएशन के लिए सहाय करेंगे और हमारा टारगेट है सैचुरेशन. ये 15 दिन में जितने भी बचे हुए लोग हैं जिनको ये लाभ मिलना था लेकिन मिला नहीं है, उनको हमको आइडेंटिफाई करके प्रोसेस करके उनको उनके हाथ में कार्ड थमाना है. कार्ड मिलने के बाद एक अश्योरेंस मिल जाता है कि 5 लाख तक का उपचार वो किसी भी सरकारी अस्पताल में कर सकते हैं. तो जितना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ता है, आना जाना, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंडिचर, दवाई का खर्चा, डॉक्टर कंसल्टेशन फीस हो गया प्राइवेट में या फिर लैब फीस हो गया, उसको हम लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन या अंत्योदय अप्रोच में जो पुअर लोग हैं उनका हम टाल सकते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ आयुष्मान भव थर्ड वुड बी द आयुष्मान मेला. तो 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक 4 हफ्ते हमारे पास है. चारों हफ्तों में एक दिन एक कैंप लगेगा, उसको हम आयुष्मान मेला बोलेंगे. आयुष्मान मेला में पर्टिकुलरली टीबी, क्योंकि टीबी एक नोटिफाइड डिसीज होता है और टीबी को आइडेंटिफाई करना, कुछ ट्रीटेबल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कुछ को हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसको मैनेज करना पड़ता है. आज हम लोग आयुष्मान भव कैंपेन का लॉन्च किए हैं. माननीय राष्ट्रपति महोदया उन्होंने आज लॉन्च किया है राष्ट्र लेवल पे और सिमिलरली स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में भी आज लॉन्च हुआ है. और इसमें हम लोग 4 में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स करेंगे. हर एक गांव में हम लोग कोशिश करेंगे कि ब्लड डोनेशन कैंप विद द हेल्प ऑफ NGOs, सिविल सोसाइटीज़ अलॉन्ग विद अदर डिपार्टमेंट्स हम लोग करें. और जो डोनर्स है जिसका जो भी रिपोर्टिंग है वो ई रक्त कोष पोर्टल में हम लोग करेंगे. और चौथा कॉलम में हम लोग ऑर्गन डोनेशन, जो एक नया संकल्पना है, उसमें हम लोग कोई भी इंडिविजुअल पोर्टल वेबसाइट में जाके एक प्लेज ले सकता है, प्रतिक्रिया ले सकता है. और एक हेल्पलाइन हमने वेबसाइट में डाला है, तो हेल्पलाइन को कॉल करके कोई भी समस्या रहने से उसको कॉल कर सकता है. तो ये 15 दिन का जो कार्यक्रम है 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक, इसमें हम सेवा पखवाड़ा के हिसाब से इसको सेलिब्रेट करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे और इसका जो भी आउटकम है उसको हम आयुष्मान भव पोर्टल, जिसका उद्बोधन माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अभी किया है, उसमें हम लोग एंट्री करेंगे. और हम समझते हैं कि एक अच्छा स्क्रीनिंग, सर्वे और सर्विस का कैंपेन ये होगा और 2 अक्टूबर को हमारे हाथ में एक अच्छा रिपोर्ट आएगा. और जहाँ जहाँ इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वी कैन डेफिनेटली टेक अप विद द NHM एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस. थैंक यू.